Hello students, how are you? Hope you're very well at home, taking care of your studies and yourself. अब हमने सेल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. Last time we had talked about cell. We have already completed all the details about the cell. Hope all those are clear with you. The cell is a very important chapter from the point of view of all the exams and the basis of biology. So you need to be clear with that chapter. अब हम आज next chapter start करेंगे, that is tissue. Tissue basically is a group of cells. तो हम एक सेल के बारे में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में है. तो अब हम वो स्टार्ट करेंगे. सो टिल नाउ हमने जो पढ़ा है उसका अगर एक रिवीजन करें तो दिस वाज अ सेल. इन द सेल देयर वाज अ न्यूक्लियस. इन द न्यूक्लियस there were chromosomes or chromatids, chromatin material. Chromosomes means cell is dividing. This was the cytoplasm. if इसको अपन 3 dimensional देखें तो ऐसा सेल होगा, right? This way, this is a cell. This is filled with cytoplasm. Cytoplasm के अंदर there are the cell organelles like the endoplasmic reticulum, right? Like this. ये हमने देखा था. Then there are cell organelles like the mitochondria. If it is a plant cell, it would be the chloroplast. If it was a plant or animal cell, दोनों में ही mitochondria होते हैं. Then there are structures like this, which are the Golgi bodies, right? Then there are lysosomes. Plant cell में vacuole होता है. ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, right? So these we have already discussed. Now we need to discuss that the group of cells को क्या कहते हैं? Tissue. So the next chapter is tissue. लेकिन let us see the connection between both these chapters. See, as you know, this is one cell, right? तो एक cell cannot be sufficient to make all the living organisms. There are two types of living organisms. एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर, जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, या जैसे कई बैक्टीरिया हो गए. वो तो सिर्फ सिंपल एक सेल से बने हुए हैं. लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं नहीं. सारे ऑर्गेनिजम्स तो आप खुद जानते हैं, ऑर्गेनिजम्स में ट्रीज भी आ जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स में सारे जो wild animals or the animals which are roaming around us like the cat and the dog and humans से लेके elephants से लेके all are living organisms. सारे plants, the neem tree, the small herb which you are seeing. So there are so many living organisms different, right? So they all cannot be made up of a single cell. वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे group of cells होते हैं. Because one cell cannot be sufficient for the working of such a large complex system. तो कुछ organisms unicellular होते हैं, बहुत microscopic छोटे होते हैं. उनका एक ही body, उनका body एक ही cell है. For example, अगर अमीबा की बात करें, it is an organism like this, जिसका plasma membrane है, जिसका nucleus है, cytoplasm है, lives in dirty water and all that, sufficient है उसका life. Bacteria अगर देखें, एक ही bacteria है, it has a tail sometimes, और bacteria round भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी, टेल भी हो सकता है, इस टाइप होते हैं. दे कैन बी फॉर देन वन सेल इज इनफ. तो यूनिसेल्युलर का तो हमने देख लिया ऐसे वर्किंग होगा, लेकिन मल्टी सेल्युलर में तो ऐसे नहीं चल सकता. सो व्हाट नीड्स टू बी डन? देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग वेरियस फंक्शंस. वो ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टिश्यू. और टिश्यू से भी हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी सफिशिएंट नहीं हो सकता. जैसे कुछ लोअर प्लांट्स है, वो तो टिश्यूज जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, उन्होंने काम कर लिया, तो टिश्यूज ने सिंपली वर्क कर लिया. लेकिन आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी देखो तो क्या इसमें टिश्यू से काम चलेगा? नहीं. सो मेनी टिश्यूज मेक अप द ऑर्गन, मेनी ऑर्गन्स मेक द ऑर्गन सिस्टम एंड देन द ऑर्गेनिज्म. ये मैंने आपको बताया था, एक सेल फिर अ ग्रुप ऑफ सेल. सो वी आर स्टडिंग अबाउट दैट टुडे, that one cell
makes the tissues. There is one cell which makes a group of cell which is tissue. Tissues collect and make a organ. Organs collectively make the organ system, and organ system collectively make the organism. तो ह्यूमन बॉडी अगर ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स है. वो ऑर्गन सिस्टम्स किससे बनी हुई है? बहुत सारे ऑर्गन्स से बनी हुई है. ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं? बहुत सारे टिश्यूज मिलके बने हुए हैं. और टिश्यूज किससे बने हुए हैं? बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताऊं ना, तो ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल पैनक्रियास. देयर विल बी द लिवर हियर. दिस इज द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. देन देयर इज द लार्ज इंटेस्टाइन लाइक दिस. आई एम मेकिंग अ रफ डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन. तो देखो, दिस इज द होल ऑर्गन सिस्टम. लेकिन हमारे अंदर एक ही सिस्टम थोड़ी है, ऐसी कई सिस्टम्स है, राइट? दिस इज वन डाइजेस्टिव, ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ऐसा हार्ट वाली सिस्टम होगी, स्केलेटल सिस्टम होगा. तो ये सारी सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म. लेकिन अब इसी सिस्टम में देखें तो डिफरेंट ऑर्गन, स्टमक इज अ ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ऑर्गन, ईसोफेगस इज अ ऑर्गन. अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया. ठीक है. अब इस ऑर्गन, एक ऑर्गन को ले लीजिए, स्टमक मान लो. इफ दिस इज द स्टमक, तो स्टमक में बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन होता है. तो इसमें कुछ सेल्स ऐसे लॉन्ग होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, सारे मिलके स्टमक बनाते हैं. सो दैट इज टिश्यू. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज टिश्यूज. कि मान लो ये एक ऑर्गन है, तो इसमें किस किस टाइप के टिश्यू होंगे, यहाँ पे किस टाइप का टिश्यू होगा, किस टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, इंटेस्टाइन में किस टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे. ये सब अब हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे हैं. अगर प्लांट में देखें तो प्लांट के अलग अलग, लीफ में कैसे टिश्यूज होंगे, रूट में कैसे होंगे, हम उसके बारे में, पूरे प्लांट बॉडी को इमेजिन करके उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर. यू नीड टू नो द कनेक्शन वेरी वेल. इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन द चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू. बिकॉज थोड़ा सा जब हम डायरेक्टली पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, कैसे है. सो आई मेड दिस टू एक्सप्लेन दिस टू यू. आई हैव रिटन डाउन दिस कि टिश्यूज ऐसे मिलके ऑर्गेनिज्म तक आते हैं. अब हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है. जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हमको कलेक्टिवली ऑर्गन के बारे में समझ आ जाएगा कि क्यूबॉइड टिश्यू है, 3-4 स्केलेटल टिश्यू है, बोन है, सारे मिलके बना है. वो आपको समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली हमको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में समझना है. लेकिन ये जो है, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आप जानते हो ह्यूमन बॉडी किस सेल से स्टार्ट हुआ? जाइगोट. जाइगोट से फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हुए और यहाँ आ गए. दैट मीन्स एक ही सेल था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. राइट? तो वो क्या प्रोसेस था? दैट प्रोसेस वाज द सेल डिवीजन. व्हेन सेल्स डिवाइड, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दैट इज सेल division. What is this? This is cell division. जब एक सेल डिवाइड करता है तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और हम उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स. Excuse me. So we are studying about this first. A little bit more about cell division. Hope this is clear to you, the cell division, because that is given in the end of your chapter. I just wanted to explain the connection so you'll be easily able to relate. ठीक है. अब सेल डिवीजन, जो सेल्स होते हैं, एक जाइगोट है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी है. मान लो एक छोटा सा सेल डेवलपिंग इनटू अ होल ह्यूमन बॉडी, स्मॉल बेबी. व्हेन इट इज बोर्न यू मस्ट बी सीन सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी है. फिर सिर्फ उसमें और ग्रोथ होता रहता है. तो कैसे होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है. वन इज माइटोसिस, सेकेंड इज meiosis, or you can say meiosis. Got it? Mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis are the 2 types of
सेल डिवीजन, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। लेट मी टॉक अबाउट माइटोसिस। बेसिकली बॉडी में हर जगह पे माइटोसिस ही होता है, ठीक है। माइटोसिस, फॉर एग्जाम्पल जाइगोट इज डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स, तो वहां पे भी माइटोसिस। हमारे बॉडी में कुछ ऐसी जगह है जहां पे कॉन्स्टेंटली कुछ ग्रो करते हैं ना, जैसे हमारे हेयर के बेस पे सेल डिवीजन होता है, तभी तो हेयर लंबे होते हैं, नेल्स बढ़ते रहते हैं, तो वहां पे सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे सारे सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस। तो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए कोई भी डिवीजन होता है वो कौन सा है, माइटोसिस। मियोसिस जो है, मियोसिस उसमें क्या है, माइटोसिस के लिए इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, meiosis is for formation of reproductive cells, right? तो meiosis is what, for the formation of reproductive cells। सिर्फ एक जगह पे मियोसिस काम आता है, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट लेट मी सी हर टॉक अबाउट माइटोसिस। ये बस याद रखना, एक ये चीज इसके लिए याद, मियोसिस सिर्फ एक काम के लिए होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन में सिर्फ मियोसिस काम आता है, अदरवाइज एट एवरी प्लेस फॉर ग्रोथ, और ये आपको लग जाती है, वापस नई स्किन आती है, या कुछ भी होता है जहां पे प्लांट्स में न्यू लीव्स आती हैं, वहां सब जगह क्या होता है, माइटोसिस। प्लांट्स में भी होता है, इट इज सीन इन एनिमल्स, ह्यूमंस, एवरीवेयर, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट। अब आप जानते हो सेल एक था, आपने शायद 8th वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन में, मैं ह्यूमंस का बेस लेके बता रही हूँ आपको ताकि इजी होगा, आपने चैप्टर पढ़ लिया, इसीलिए 8th में सम ऑफ यू इन द 7th स्टैंडर्ड हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमन गैमेट और द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। मेल वाला था स्पर्म, फीमेल वाला था ओवा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा। अब स्पर्म एंड ओवा दे फॉर्म वन सेल दैट इज द जाइगोट। और ह्यूमन सेल के अंदर एवरी ह्यूमन सेल हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो जो क्रोमैटिन मटेरियल व्हेन इट गेट्स कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स द क्रोमोसोम, उनका नंबर कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। अब 46 होके ये जाइगोट डिवाइड करता है इनटू 2, then this divides again into 2, and then again ऐसे और बन जाते हैं, and just this way we can go on and the whole organism will form, right? What is this? This is the cell, this is the nucleus, this is cell, this is the nucleus। अब ये जो सेल्स बने, ऐसे सेल डिवीजन हुआ तो आप जानते हो ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, धीरे 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 ग्रोथ होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 46 है। चलो अब अपन ने माना कि ये आधा हो गया, चलिए मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आधा हो गया, 46 से आधे इस सेल में चले गए, आधे इस सेल में चले गए, मान के चलते, तो यहां पे कितने रह जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब मान लो इसमें आधा गया तो कितना हो जाएगा, 11.5 करके चल सकते, 23 हो जाएगा, यहां पे 11.5 है, फिर उसका आधा, एंड बाय द 5th और 6th डिवीजन क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट 1 2 रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सेल डिवीजन बंद हो जाएगा। तो क्या ऐसा डिवीजन पॉसिबल है, नहीं है, राइट। अगर ग्रोथ करनी है तो ये क्रोमोसोम का नंबर इतना ही मेंटेन रहेगा, तभी प्रॉपर ग्रोथ होगी।
ये आपको समझ में आया? सो टू एंश्योर दैट हमें क्या चाहिए, ये सेल 46 वाला है तो इस सेल में भी कितने हो, 46 हो, और इस सेल में भी 46 हो, फिर इससे जो सेल बनते हैं उनमें भी 46 हो। ऐसा अगर सेल बनता है तब ग्रोथ प्रॉपर होती जाएगी, किसी सेल में कम नहीं होगा, राइट, बिकॉज सेल हैव टू वर्क। तो ये होगा तो पॉसिबल है, लाइफ ग्रोथ इज पॉसिबल। सो टू एंश्योर दिस there is a division called mitosis, जिसमें the number of chromosomes never changes। ठीक है, अब आप समझिए ये कैसे होगा। सिंपल है ना, मेरे पास मानो एक इंफॉर्मेशन की शीट है, मुझे कुछ आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंफॉर्मेशन शीट एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू 2 students. So what would I do? I cannot tear it half and give, no? For example, I have written 10 questions and I want to give it to 2 students, or I want to give it to 4 students, or I want to just divide between 2 groups. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉपी को मैं आधी तो नहीं फाड़ सकती, तो 5 क्वेश्चन ये करेगा, 5 क्वेश्चन ये करेगा, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आधा नॉलेज बच जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी एक फोटो कॉपी बनानी पड़ेगी, राइट? जैसे ही मैंने फोटोकॉपी बना ली, अटैच कर ली, अपने पास रख ली, जब समय आएगा व्हाट आई वुड डू, आई वुड डिवाइड इट इक्वली टू बोथ। सो बोथ द स्टूडेंट्स गॉट द सेम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरा इंफॉर्मेशन ग्रो भी कर गया, सबके पास इक्वल भी पहुंच गया, परफेक्ट वर्क इज डन, राइट? सेम थिंग दिस सेल डज। व्हाट इट डज, बिफोर डिवाइडिंग देयर इज अ कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम मेड, ईच क्रोमैटिन मटेरियल या डीएनए का डबलिंग हो जाता है, डबलिंग होके फिर डिवाइड होता है, सो इट बिकम्स अगेन 46 एंड 46। अब बिफोर डिवीजन व्हाट हैपेंस, सेल अगर 46 से इसमें और 46 इसकी कॉपीज जुड़ गई, इट बिकम्स 92, फिर डिवाइड करो तो अगेन 46 आ जाएगा, राइट? सो दैट इज वेरी सिंपल, अ कॉपी इज मेड and then it is divided. That ensures that there is no loss of any information, DNA number remains same. तो ये देखा जाता है माइटोसिस में। और अब मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस होता कैसे है। Simply in cell division, I'm talking about mitosis. First, there is karyokinesis. Kinesis means division. आप ये मान के चलो, kinesis means division. Then there is cytokinesis. Karyo word आप जानते हो किससे divide, it is related to what? Nucleus. Kinesis, division. So first there is nuclear division or division of the nucleus. And then cyto is related to cytoplasm or cell, and then there is the division of the cytoplasm or cell divides as a whole. समझ में आ रहा है? तो अगर ये सेल है तो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 and then the whole cell divides into 2. समझ में आ रहा है? This is it. First ये एक न्यूक्लियस था, it divided into 2 like this, and then so this we get 2 nucleus, and then this cell starts dividing like this and we get 2 cells like this. समझ में आ रहा है? This is basically mitosis. अब ये डिवीजन होने से पहले क्या हो जाता है, कॉपी बन जाती है, और फिर ये डिवीजन होता है। तो कॉपी बनती है इन अ सेल साइकिल स्टेज विच इज द एस फेज, सिंथेसिस फेज। अब अपन मान के चले कि माइटोसिस हो रहा है, तो इसके पास कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, 46 का डबल कॉपी अटैच्ड टू एवरीथिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस अकर्स। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, माइटोसिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ and meiosis is for the formation of reproductive cells, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है,
तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, कैरियोकाइनेसिस. इसके 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, third is anaphase, and fourth is telophase. After all these are completed, nucleus divides into 2. Then there is cytokinesis. So let us study one by one. Diagrammatically थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. प्रोफेज में क्या होता है. See now I am not this. मैं हमेशा सेल बना रही थी, लेकिन अभी मैंने क्या बनाया है, ये दिस इज द न्यूक्लियस, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कैरियोकाइनेसिस. कैरियो क्या है, न्यूक्लियस. कैरियो, राइट. सो दिस इज व्हाट न्यूक्लियस. बाहर हमारा सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बट सेल इज एज इट इज. सेल के अंदर अब न्यूक्लियस में ये चीजें चल रही है जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ. ठीक है. सो प्लीज पे अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, there are 46 chromosomes like this. ये ग्रीन वाले जो मैंने बताए वो तो सिंपल अपना ओरिजिनल क्रोमोसोम था, और उसके साथ उसकी कॉपी जुड़ी हुई है लाइक दिस. समझ में आ रहा है आपको, लाइक दिस. सो इनिशियली इट वाज लाइक दिस, सबके साथ अपनी कॉपी जुड़ी हुई है. ठीक है. इन प्रोफेज व्हाट हैपेंस, in prophase this, now all these जो है ये ऐसे कंडेंस होके बीच में आनी स्टार्ट करते हैं. और आपको मैंने बताया था, दिस आई एम रबिंग आउट सो दैट यू गेट आइडिया. आई सेड देयर इज अ स्पिंडल हियर, देयर वाज अ स्पिंडल हियर. ये अपन सेल का बाउंड्री बना देते तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देन आई ड्रॉ द ओनली द न्यूक्लियस. ये स्पिंडल जो थे सेंट्रियोल, they start moving here. सेंट्रियोल इधर आना स्टार्ट करता है, एक सेंट्रियोल इधर चला जाता है. उसके बाद सो नाउ आई बी ड्रॉइंग द सेंट्रियोल्स एट द पोल. ठीक है. सो द सेंट्रियोल रीचेस हियर. ये जो क्रोमोसोम्स है बिल्कुल पास आना स्टार्ट करते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, धीरे 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 डिसॉल्व हो जाती है. क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. मतलब अब ये जो सारे क्रोमोसोम्स है कहां पे है, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. सो दिस इन प्रोफेज सेंट्रियोल्स मूव साइड हियर एंड क्रोमोसोम्स कंडेंस साथ साथ आना स्टार्ट करते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है. तो एंड ऑफ प्रोफेज में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, और यहां से ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फेंकना स्टार्ट कर देता है. समझ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं. तो ये आपको समझ में आ रहा है कौन सा फेज है, प्रोफेज. सो दिस आई अबाउट. इन द सेकेंड, नाउ आई एम ड्रॉइंग मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अवर सेल. ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये यहां आ गए सारे, राइट देयर, एंड दीज क्रोमोसोम्स दे अरेंज इन द मिडल ऑफ द सेल. समझ रहे हो, 8 है तो मैं सिर्फ 4 बना रही हूँ, सारे में होता है बट वो अपना इजी रहेगा, इसलिए ये सारे ऐसे बीच में अरेंज हो जाता है. कैसे, लाइक दिस इन द मिडल ऑफ द सेल. दिस इज मेटाफेज, मेटा मीन्स मिडल. और यहाँ पे इनमें हमेशा एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. ये स्पिंडल फाइबर्स इसमें जाके अटैच हो जाते हैं. सो दिस इज मेटाफेज. समझ में आ गया. अब अगर मैंने 2 रस्सियां यहां लगा दी और फिर सडनली मैंने दोनों रस्सी को वापस खींच लिया, तो क्या होगा, एक थ्रेड इधर जाएगी, दूसरी थ्रेड उधर चली जाएगी, होगा ना. सो मेटाफेज में इतना हुआ. इसके बाद आता है कौन सा फेज, एनाफेज.
तो should I rub this? You must have made it. Please make it sequentially. In your book, I've made big diagrams so you can understand. But drawing a line in your book. This is. Now I'm drawing what? Anaphase. Anaphase में क्या हुआ? These threads. ये जो threads थे, they are pulled back. Threads are pulled back like this. और इनकी वजह से क्या होता है? इनके साथ साथ क्या चला जाता है? One strand of the chromosome goes off. और क्रोमैटिड कह सकते हैं इसको. समझ में आ गया? एंड दिस वॉज अवर सेल. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दिस. सो नाउ वन. व्हाट वाज दिस? दिस वाज ओरिजिनल. दिस वाज इट्स कॉपी. ओरिजिनल इट्स कॉपी. एक कॉपी इधर गई, दूसरी कॉपी इधर आई. ठीक है. सो एनाफेज में ये होता है. दिस वर हियर. आप वो रिलेट कर सकते हैं थोड़ा. छोटे बड़े से प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. जस्ट पे अटेंशन टू द प्रोसेस. ठीक है. सो दिस वाज एनाफेज. ठीक है. उसके बाद लास्ट कम्स द टीलोफेज. लास्ट इज व्हाट? टीलोफेज. टीलोफेज लास्ट. ये जो सारे फाइबर्स, ये फाइबर्स यहां तक पहुंच जाते हैं और ये डिसअपियर होके ये सारे क्रोमोसोम्स यूं इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे. क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं अपन इनको. लाइक दिस. ठीक है. नाउ डोंट से कि 4 और ज्यादा हो गया. सारे 46 होते हैं. ठीक है. अब आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए और इस वक्त क्या बनना स्टार्ट होता है? वापस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग. सो हियर सी फर्स्ट दे वर अटैच्ड. 46 चले गए इसमें. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस बन गए. दैट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. एंड इसी वक्त ये धीरे धीरे ऐसे बीच में डिवाइड करना स्टार्ट करता है. धीरे 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 व्हाट विल हैपन? ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस. इसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? स्लोली 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 व्हाट हैपेंस? दिस गोज इनसाइड एंड देन this gives rise to cytokinesis में. This gives rise to 2 cells like this in which there is nucleus like this. See? Like this. So 2 cells are formed and see how nicely it has been engineered. Human body and the cell division and all the living organisms on earth are so very well developed that or engineered. It's a masterpiece, the human body or any body of a living organism. क्योंकि इतनी सी छोटी एक सेल आपके लग जाती है, फिर नई स्किन आती है, उसमें इतने सारे प्रोसेस होते हैं, इतने सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. वो अपन को डिटेल में अगर आप हायर क्लासेस में लेंगे तो आपको समझ में आएगा. लेकिन दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि देखो एक छोटे से एक सेल में से 2 होने में इतनी इंजीनियरिंग लगती है. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट इज माइटोसिस. अब ग्रोथ हो जाएगी. अब ऐसे और बनेंगे तो ग्रोथ होती जाएगी. सो दिस वाज व्हाट वाज दिस? माइटोसिस. ठीक है. अब मियोसिस की क्या जरूरत पड़ती है? फिर आपको समझ में सोचने में आ रहा होगा कि ठीक है ग्रोथ ऐसी होती जाती है. कुछ लग गया तो हेयर ग्रो कर गया, तो स्किन ग्रो कर गई, तो प्लांट्स में भी नए पत्ते आए तो रूट ग्रो कर गया. तो एवरीवेयर इट इज माइटोसिस. बट नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ मियोसिस? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एक सेल में 46 था. वापस अपन ह्यूमन स्पर्म और ओवा की बात करते हैं. दिस इज द जाइगोट. एंड जाइगोट डिवाइड करके कैसे ग्रोथ कराता है वो तो मैंने आपको बता दिया. दैट वाज ओके. बट इमेजिन दिस स्पर्म आल्सो हैड 46 एंड दिस ओवम आल्सो हैड 46. मान लीजिए अभी तो बॉडी सेल्स है. इनमें भी अगर 46 होता तो जाइगोट में कितना बनता? 92. फिर पूरा ऑर्गेनिज्म 92 वाला होता और फिर उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनमें और डबल होता.
तो डीएनए नंबर तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैज टू बी डन टू गेट दिस नंबर. इन सेल्स में कितने होने जरूरी है? 23 होना जरूरी है. इसीलिए इन सेल्स के बनने के लिए भी बॉडी के अंदर एक अलग प्रोसेस है, मियोसिस. एंड मियोसिस एंश्योर्स दैट जो सेल्स मियोसिस के बाद बने हैं उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट इज द सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड meiosis. So meiosis is seen in every organism which reproduces by reproductive cells. Sexual reproduction जिसमें होता है, जैसे sperm ova formation में meiosis होता है, या plants के अंदर भी, flower के अंदर reproductive part of plant is the flower, उसके अंदर meiosis देखा जाता है. Any living organism उसके gametes जब बन रहे होते हैं या reproductive cells जब बन रहे होते हैं तब मियोसिस देखा जाता है. ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है. पूरी बॉडी की ग्रोथ सब वगैरह में माइटोसिस होता है, लेकिन जब उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं तो उस प्लेस पे देयर इज मियोसिस अकरिंग. बिकॉज मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ. उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं. एक्चुअली मियोसिस इज अ डिटेल्ड प्रोसेस, लेकिन उसमें division occurs twice. What happens? Meiosis 1 and meiosis 2 होता है. Meiosis 2 is exactly similar to mitosis, लेकिन mitosis में हमने स्टार्ट किया था with 46 chromosomes. Meiosis 2 starts with 23 chromosomes. तो 23 डिवाइड होके सेल्स बन जाते हैं. लेकिन ओरिजिनल में 46 था, तो पहले एक डिवीजन हो जाता है जिसके अंदर थोड़ा सा I'll just talk about it. Meiosis, for example, what happens? This is a cell. इसमें 46 क्रोमोसोम था. Meiosis 1 वही चारों फेजेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, सॉरी मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. लेकिन उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 के बाद 2 सेल बनते हैं और उसके बाद वापस स्टार्ट होता है और 2 सेल बनते हैं. तो मियोसिस के एंड में एक सेल में से 4 सेल बनते हैं. ठीक है, और वो लेट अस सी मियोसिस 1 में भी चारों फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. बट इसमें क्योंकि ये 1 है तो यहाँ क्या लग जाएगा, 1, ये 1, ये 1. डोंट पे too much attention to the detailings. It's not a part of your course. कभी हुआ तो I'll explain you. लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, ये सेल्स 46 थे ना, तो 46 क्रोमोसोम अपन वापस वैसे ही बनाते हैं जैसे अपन ने बनाए थे. Okay. So I was talking about meiosis. First, just write down the differences between them, and then I'll explain meiosis a little bit. So differences between mitosis and meiosis is, mitosis is for the growth of this body. Meiosis is for the formation of reproductive cells or gametes. For number of chromosomes remains same in mitosis. Number of chromosomes become half in meiosis. Forms diploid cells. Diploid cells का मतलब होता है जिन cells के अंदर 2n number of chromosomes है, और haploid cells having half number of chromosomes. For example 23 number of chromosomes is equal to 23, तो 2n कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा humans में. All species have their different number of chromosomes. Even plants, even animals, even wheat has, even rice has, everything has. But humans की बात कर रही हूँ तो wheat और rice उनमें भी, for example, plants में भी there is a male part and a female part, anther and stigma and all you must have studied. तो उनमें भी n number of chromosomes होते हैं कई बार. For example, किसी species का 12 है number of chromosomes n, तो उसके diploid cell होगा 24. अगर उसका हैप्लॉइड सेल कंटेन 6, तो उसका डिप्लॉइड सेल पूरी बॉडी में होगा 12. ठीक है, तो दैट इज इट, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. डिप्लॉइड हैविंग 2n नंबर, तो अपनी बॉडी में सारे सेल्स डिप्लॉइड है एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स. Reproductive cells are having half number of chromosomes. Okay, so hope you write down this first, then I'll explain a little bit about meiosis to you. What I was telling you was meiosis में क्या होता है, आई एम जस्ट राइटिंग M1, that is meiosis 1.
4 फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोफेज 1, that was small, so I'm just writing it bigger. Metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. और ये किसके डिवीजन होते हैं आप ये तो जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना. तो अब मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अवर ओरिजिनल सेल हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब इन 46 को मैं पूरों को, आई एम नॉट मेकिंग ऑल ऑफ देम बट आई कैन मेक देम लाइक दिस. कैन आई मेक देम लाइक दिस, लाइक दिस. वाई एम आई मेकिंग, उसमें मैंने 2 अलग इसलिए बनाए थे क्योंकि कॉपी थी, इसमें भी कॉपी है, बट आई एम मेकिंग 2 डिफरेंट कलर्ड क्रोमोसोम्स बिकॉज I want to indicate that half number of chromosomes are from your father's side, half number from your mother's side. इनमें इनकी कॉपी बन के जुड़ गई है. I could have made it like this. This was the original and this is its copy. ऐसे भी मैं बना सकती थी, लेकिन अभी हमें ज्यादा ध्यान देना है about the paternal and maternal chromosome. 23 chromosomes out of the 46 comes from your father's side, sperm side, and 23 comes from your mother's side. So collectively in every cell of the human body there is 46, 23 from father, 23 from mother, paternal side father side, maternal side mother side, 23 chromosomes making 46. So here green I have made paternal, red I have made maternal, so that I can explain a little bit. अब इसमें भी क्या है, ये ओरिजिनल है, ये इसकी कॉपी है पैटर्नल की, मदर का है ओरिजिनल, ये उसकी कॉपी है. ठीक है, इतना तो क्लियर है. these are the chromosomes. Now let's see what in prophase what happens. इसके और 4 फेजेस होते हैं, उसका डिटेलिंग आप ध्यान ना दीजिए because but there are, because it's not a part of your course, it is later on, but there are 4 stages: pachydine, leptotene, zygote, pachydine and diplotene. ये 4 फेजेस ऑफ प्रोफेज है. ये तो अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन उसके एंड में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स जैसे 1 क्रोमोसोम पैटर्नल and 1 chromosome maternal, like this is happening inside the nucleus. ऐसे ये सारे chromosomes है ना पास पास आ जाते हैं, and then what is done, they just ऐसे exchange कर लेते हैं, ऐसे overlap करते हैं, और ओवरलैपिंग के बाद जो हमें एंड में प्रोफेज एंड में जो हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे ना, वो इस टाइप के होंगे. लिटिल बिट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम हियर साइड हियर, इस टाइप से मैटरनल हो गया तो थोड़ा पैटर्नल का डीएनए आ गया, लिटिल बिट एडिशन हो जाता है. इसका ये जो स्ट्रैंड था ये इधर लग गया और इसका इधर लग गया. ये प्रोसेस होता है पूरा डिटेलिंग, वी कैन नॉट go that because it would confuse you, but आप ये कहिए कि थोड़ा बहुत पास में आए और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके ऐसे हो गए, फिर इन्होंने बीच में अरेंज हो गए. एनाफेज में क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम्स तो वेंट हियर एंड 23 वेंट हियर. पूरे क्रोमोसोम, उसमें क्या था, ये स्ट्रैंड अलग हुई, ये स्ट्रैंड नहीं, इसमें क्या होता है पूरे क्रोमोसोम्स इधर. बस ये है आपको ध्यान में देना है कि लिटिल बिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैज बीन एक्सचेंज. तो ये वाले थोड़े से इस टाइप के होंगे, समझ में आ रहा है, दिस वे. तो अब टीलोफेज में क्या होगा, दे विल ऑल अरेंज हियर, लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन है इनमें, दे विल ऑल अरेंज हियर. ठीक है, एंड देन व्हाट विल फॉर्म, इनके आसपास क्या आनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो अब ये सेल क्या बना, दिस ऑल, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज कर लिया मतलब, फिर ऐसे बीच में अरेंज हो गए, फिर 2 सेल. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट मियोसिस में क्या हुआ, एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और 2 सेल्स बन गए. तो दैट वाज मियोसिस 1 के एंड में हमें क्या मिला, टीलोफेज के एंड में हियर द क्रोमोसोम्स वर अरेंज्ड लाइक दिस, 2 सेल्स आ गए जिसके अंदर न्यूक्लियस था,
जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल, और यू कैन से लाइक दिस, वो जो मैंने एंड में बनाया था वो सारे इधर अरेंज हो गए like this, total chromosomes, and having a little bit of change in them like this. Genetic material exchange था ना, इसी वजह से, ठीक है, that way. तो this is it. Now what happens in meiosis 2? meiosis 2 में क्या करना है? meiosis 2 में you have a cell. मान लो ये मैं ओरिजिनल सेल बनाती हूँ. अब meiosis सेल में दोनों सेल्स में जो 23 है उनमें वापस डिवीजन होगा. So what happens in this? भी अपन एक ही सेल को देखते हैं. इसमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स थे जिनमें लिटिल बिट ऑफ चेंजेस आ गया था बिकॉज ऑफ एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल. ये 23 है, आई जस्ट ड्रॉन 4. बट अब क्या होगा? द सेम फर्स्ट प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. ये होगा. प्रोफेज में क्या होगा? ये सेम, ये चला जाएगा. उसके बाद ऑल विल come close like this in the middle. Sorry, I'll draw with colors. All will come in the middle like this, start condensing. They have a little bit of genetic exchange, so like this. यही दूसरे वाले 23 वाले में हो रहा है. मेटाफेज में they will arrange in the middle. All will arrange in the middle like this. अब मैं किसी पे ना बनाऊं तो प्लीज डोंट से अरे वो रह गया. सब पे जो था वो वैसा ही है, और स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो जाता है. एक इधर से आया, दूसरा इधर से. इस पे भी अटैच होता है, इस पे दोनों साइड, और इस पे भी दोनों साइड. एंड नाउ व्हाट विल हैपन? एनाफेज में दे आर पुल्ड बैक. तो एनाफेज में क्या जाएगा? दिस वन गोइंग लाइक दिस. इस क्रोमोसोम की बात कर ले अपन. इट वॉज अ रेड वन, सो दिस रेड वन वेंट लाइक दिस, द अदर रेड वेंट लाइक दिस टू द अदर साइड. ये ग्रीन की बात करें तो ग्रीन वेंट डाउन लाइक दिस विद अ लिटिल रेड, एंड ऊपर वाला सिर्फ ग्रीन चला गया. ये इधर भी जा सकता है, ये इधर, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर. तो ऐसे सारे सेपरेट हो गए. और टेलोफेज में इनके आसपास क्या आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद हाफ. इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये इसमें भी जा सकता है. डोंट से एनी कि ये जाएंगे एक जैसे रेफर, बट ये. सो दिस वाज गिविंग यू आइडिया कि एंड में कितने आते हैं? 23 रह जाते हैं. और से दिस स्टार्टेड विद 23. अब ये इसकी ओरिजिनल, ये इसकी कॉपी थी विद सम मॉडिफिकेशन, फिर अलग हो गए. तो इसमें दिस सेल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें ऐसा है तो इसकी कॉपी यहाँ पे जिसके साथ रेड अटैच हो गया, थोड़ा बहुत कुछ जेनेटिक चेंज है. इसी की वजह से ये देखो, ये वाला सेल फॉर एग्जांपल इसको देखो, दिस ग्रीन वन वेंट हियर, इसकी कॉपी ये गई थी जिसमें रेड था. दिस रेड वन गोइंग हियर, इसकी कॉपी इधर गई जिसमें मॉडिफिकेशन था. तो दिस मॉडिफिकेशन लीड टू वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स. आप अपने पापा मम्मी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, राइट, बिकॉज ऑफ द मियोसिस प्रोसेस जिसमें वेरिएशन आते हैं. सो एट द एंड ऑफ दिस यू गेट 2 cells. यही वो दूसरे वाले सेल में हुआ था, तो यू गेट 2 more. सो एट द एंड ऑफ मियोसिस व्हाट हाउ मेनी सेल्स यू गेट 4 haploid cells. ठीक है. और माइटोसिस के एंड में आपको 2 ही सेल मिलते हैं जो एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. माइटोसिस फॉर्म्स डिप्लॉइड सेल्स, और ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल्स है. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू आइडिया. बहुत डिटेलिंग इसकी आपको नहीं करनी, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द सेल डिविजन अकर्स. So that I've taught today. अब next में अपन tissue पढ़ेंगे. I just wanted to tell you a connection. Till then, take care of yourself and keep studying. जो भी doubt है आप मेरे से पूछ सकते हैं. Okay? Thank you.